Hello, bachcho. My name is Sunando Devnath. I welcome every one of you in Imavate Academy. This video is for students of class 7th of ICSE board. In this video, we are going to start a very important chapter from class 7th ICSE mathematics. The name of the chapter is congruency, congruent triangles. Okay, नाम सुनकर लग रहा है काफी हार्ड चैप्टर होगा, काफी डिफिकल्ट होगा. But believe me, this is a very easy chapter and a very interesting chapter. At the same time, this chapter is very important because the concepts that you would be learning in this chapter would be used not only in mathematics of higher classes, but also in physics of higher classes. So let me tell you that this is a very important tool for physics as well. So you have to pay a lot of attention to understand this chapter. आज के इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? इन टॉपिक्स को. मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी इस टर्म का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स में जब हम कॉन्ग्रुएंसी को बोलते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स? And we will be discussing about corresponding sides and corresponding angles. Now let me tell you, my dear students, that here the book that I would be following for solving the questions in the upcoming lectures of this chapter is Concise Mathematics for class 7th. Okay, we will be discussing the exercise questions in the upcoming videos. Now children, even if your school does not follow the same book, it is not a problem, because कोई भी book हो, concept एक ही है, and तुम्हें कोई भी book से question पूछे, तुम्हें वो answer आना चाहिए. So I would be teaching in such a manner. If you follow these videos regularly, you will be learning, you would be able to solve questions from any book. So it does not matter which book is being followed in your school. But हमें पढ़ने के लिए कोई ना कोई बुक तो फॉलो करना पड़ेगा. इसलिए मैंने एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक कंसाइज मैथमेटिक्स को चूज किया है. इसके क्वेश्चंस को हम आगे करेंगे. आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, लेकिन इसके आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट, बिकॉज यू शुड नॉट मिस आउट द अपकमिंग लेक्चर्स फॉर दिस चैप्टर. हम क्लास 7th के और भी कंटेंट बनाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखना. देखो, कॉन्ग्रुएंसी जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है कोई भी दो शेप्स हैं मेरे पास, not necessarily triangle, it can be a circle as well, a square, it can be a rectangle, any shape. If I have two similar shapes, they will be said to be congruent if I keep both of the things one over the other and their edges will completely match. You're getting my point? Their edges will completely match. Now, what do I mean by this? Suppose I have a square, a big square, and I have a small square. Both of them are squares. But are these squares congruent? They are not congruent, because if I make one of the squares overlap on the other square, you see the edges, this edge and this edge, they are not overlapping on each other. They should 100% overlap on each other. So these two squares are not congruent. These two squares are not congruent. तो congruent का मीनिंग समझ में आ रहा है कि दो शेप्स को हम congruent तब ही बोलेंगे जब दोनों 100% इक्वल हो. मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे तो पूरी तरह से एजेस मिल जाना चाहिए. अभी मैं एक सर्कल बनाता हूं और एक सर्कल फिर से बनाता हूं. क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? मैंने अगर एक सर्कल को, देखो दो सर्कल्स बनाया, इस सर्कल को इसके ऊपर रख दिया तो देखो एजेस पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है. कहीं से भी एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ नहीं है, कहीं से भी कोई कुछ एज कम नहीं है. 100% एजेस ओवरलैप किए हुए हैं. तो ये अभी इस केस में हम क्या बोल सकते हैं चिल्ड्रन? दैट दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. यहां पर ये स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, यहां पे ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है. अभी तुम बताओ, ये सर्कल मैंने बनाया, मैंने ये सर्कल बनाया, क्या ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं किसी एक सर्कल को दूसरे वाले सर्कल के ऊपर रखता हूं तो एजेस मैच नहीं कर रहे.
एजेस मैच नहीं कर रहे, एक बड़ा है एक छोटा सर्कल है, इसको भी इसके ऊपर चढ़ा दूं तो भी एजेस मैच नहीं कर रहे। क्लियर है? तो दीज टू सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग मुझे लगता है समझ में आ रहा है। अभी मैं दो रेक्टेंगल्स बनाता हूं, क्या ये दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर ओवरलैप करे 100%। अब देखो ये दोनों रेक्टेंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है? एक के ऊपर एक को ऐसे ओवरलैप करो, देखो पूरी तरह से कवर कर रहा है। या फिर इसको इसके ऊपर चढ़ाओ, एक ही बात है। एजेस 100% एजेस मैच करना चाहिए। मैच किया, दैट मींस अभी जो हमने दो रेक्टेंगल्स बनाए थे, दोनों क्या है चिल्ड्रन? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दीज रेक्टेंगल्स, these rectangles are congruent। हमें लेकिन इस चैप्टर में सारे शेप्स का कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंसी तो कोई भी शेप के लिए हम यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़नी है। मतलब तुमसे ये पूछा जा सकता है कि ये दोनों फिगर में ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब थोड़ी तुम उसे एग्जामिनेशन पेपर में दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं तुमसे जब पूछा जाए, तुम थोड़ी उसे काट कर ओवरलैप करके चेक करोगे। तुम्हें वो देखकर कॉन्सेप्ट लगा के बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। वही हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। मेरे पास एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो देखने से भी लग रहा है नहीं है। इसके ऊपर इसको ओवरलैप करें तो देखो एक साइड का एज तो मैच कर गया, ये एज तो मैच कर गया, लेकिन ये एज मैच नहीं किया, ये एज मैच नहीं किया। एक्स्ट्रा पोर्शन एक दूसरे ट्रायंगल से निकला हुआ है। हेंस बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो आई होप मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज क्लियर। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग तब हम क्या बोल सकते हैं चिल्ड्रन? चलो कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन लिखते हैं। इन सारी चीजों को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुमने समझ लिया, बस समझने की वाली चीजें थी। अब कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन लिखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का डेफिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का डेफिनेशन। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। लिखो मेरे साथ साथ ये डेफिनेशन। वैसे तो डेफिनेशन एग्जाम्स में नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन नोट्स जब हम बना रहे हैं, लिख जब रहे हैं, समझने के लिए कई बार कुछ डेफिनेशंस लिखना चाहिए हमें। टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर said to be congruent if they exactly coincide with each other when placed one above the another। क्लियर है मीनिंग? जब एक के ऊपर एक को दूसरे को चढ़ाए, तब अगर वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कोइंसाइड करें, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। बड़ा सिंपल सा चीज है, इसमें कोई टेंशन नहीं। नाउ चिल्ड्रन, लेट अस अंडरस्टैंड अ फ्यू मोर थिंग्स। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग तुम लोग समझ गए हो। अब देखते हैं इन ट्रायंगल्स को। यहां पर तुम्हारे सामने दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इजंट इट? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? एक बार ओवरलैप करके देख लेते हैं। अगर ओवरलैप कर जाए एकदम 100%, देखो कर रहा है कि नहीं, एकदम एक दूसरे के ऊपर रखा, तो
पूरी तरह से एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। मैं एबीसी को भी डीईएफ के ऊपर रखूंगा तो सेम ही रिजल्ट मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेम रिजल्ट मिला एकदम, उनके साइड्स ओवरलैप कर गए। इसका मतलब है कि ये तो श्योर है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसे हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इतना बड़ा लाइन हम मैथ्स में नहीं लिखते हैं। मैथ्स में इसको छोटा करके लिखते हैं, सिंबॉलिक नोटेशन लिखते हैं। यही सेम स्टेटमेंट को कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल DEF या फिर ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर, इसको कैसे लिखेंगे? अब ये एक नया सिंबल, एक नया नोटेशन तुम लोग सीखोगे। क्या है? ABC, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल DEF। ये जो सिंबल मैंने लिखा, ये सिंबल को याद कर लो। नया सिंबल से तुम लोग इंट्रोड्यूस हुए हो। क्या? एक वेव ऐसे देना और नीचे दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देना। ठीक है, एक वेव ऐसे देना और नीचे दो लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देना। दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कभी भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट अगर है तो उनके वो दोनों शेप्स का नाम लिखेंगे और बीच में ये सिंबल डाल देंगे। दिस सिंबल मींस दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आगे से हम ऐसा पूरा इंग्लिश में बड़ा सा सेंटेंस नहीं लिखने वाले हैं, ट्रायंगल ABC एंड DEF आर कॉन्ग्रुएंट। हम लिखेंगे क्या? ट्रायंगल ABC, फिर ये सिंबल दे देंगे, उसके बाद ट्रायंगल DEF। आई होप दिस सिंबल इज क्लियर। वेरी सिंपल। इस सिंबल का मीनिंग क्या है? कि दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। अब जो अगला चीज हम सीखने वाले हैं वो है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो हमने क्या क्या कवर किया, मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया, एंड कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स वो भी हमने देखा। इसमें हमने स्पेशली क्या चीज देखा चिल्ड्रन? इसमें हमने देखा कि ये सिंबल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स में ये सिंबल को यूज करते हैं जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो उसी फिगर को हम फिर से यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल में बनाता हूं या फिर कुछ दूसरे साइड टाइप का ट्रायंगल भी बना सकता हूं। इस टाइप का एक ट्रायंगल बनाता हूं और एकदम इसी के कॉन्ग्रुएंट एक दूसरा ट्रायंगल भी बनाता हूं। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर रखकर लाइंस को ड्रॉ कर लेता हूं ताकि सेम लेंथ का मुझे लाइंस मिल जाए और हमें कोई परेशानी ना हो कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करने में। चलो, तो हमने दो ट्रायंगल्स बना लिया। इसका नाम है ABC, दूसरे वाले का नाम DEF। हो गया, सिंपल है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तुम लोग एकदम दिख रहा है तुम्हें और तुम लोग समझ गए हो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर रख रहा हो तो दोनों ट्रायंगल्स एकदम ओवरलैप कर रहे हैं। अगर ओवरलैप नहीं करते तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। यानी हम ये जरूर लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल DEF। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब समझते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो यहां पर AB साइड को देखो, इस ट्रायंगल में AB को देखो, AB को देखो मतलब इसको देखो, AB को देखो। तुम मुझे बताओ ये जो ABC ट्रायंगल में AB है वो साइड DEF ट्रायंगल में कौन से साइड के इक्वल है? तुम बोलोगे सर डेफिनेटली AB DE के इक्वल है, इन दोनों का लेंथ सेम है। AB DF के इक्वल नहीं है, DF तो काफी बड़ा है, और EF के इक्वल भी नहीं है। AB जो है इस ट्रायंगल का वो उस ट्रायंगल के DE के इक्वल है। यानी हम बोल सकते हैं कि AB एंड DE आर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जो दो साइड्स इक्वल होते हैं दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के, उन दोनों साइड्स को हम क्या बोलते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। AB इस ट्रायंगल का, DE उस ट्रायंगल का इक्वल हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, AB
and DE are corresponding sides. And please note down these things. These are very important concepts, children. सिर्फ देखो मत, लिखो, notes बनाओ, very important. इधर हम AC को अगर उठा ले, ABC ट्रायंगल से AC, तो वो किसके इक्वल होगा? उस दूसरे वाले ट्रायंगल के कौन से साइड से इक्वल होगा? ऑब्वियसली DF के इक्वल होगा, isn't it? तो तुम क्या बोल सकते हो? AC and DF are corresponding sides. अगर मैं बोलूं कि BC का corresponding साइड कौन सा है, BC का corresponding साइड कौन सा है, तुम डेफिनेटली इजीली बोल दोगे सर BC का corresponding साइड EF है. BC and EF are corresponding साइड्स. जहां तुम्हें वीडियो को पॉज करने की जरूरत है, वहां पॉज करके लिखो. क्लियर है? आई होप तुम्हें करस्पॉन्डिंग साइड्स का मीनिंग पता चल गया. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखते हैं. ये भी बिल्कुल करस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल है. करस्पॉन्डिंग साइड्स में हम इक्वल साइड्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, इधर इक्वल एंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे. इधर देखो एक एंगल बन रहा है, एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल BAC है ना. दिस इज एंगल BAC. ये जो मैंने ब्राउन से ऐसे ड्रॉ किया, BAC नाम है इस एंगल का. इस BAC एंगल जो है, ये वाला BAC एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या इस एंगल की इक्वल है? DEF के ना. BAC इज इक्वल टू EDF. ये दोनों एंगल सेम है ना. प्रोट्रैक्टर से मेजर करके भी देख सकते हो, प्रोट्रैक्टर से मेजर करके भी देख सकते. एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर प्रोट्रैक्टर रखकर उसको मेजर करके भी देख सकते हो. ये दोनों एंगल इक्वल है. तो इक्वल साइड्स, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स के इक्वल साइड्स को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, और इक्वल एंगल्स को हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. यानी अब हम क्या बोल सकते हैं चिल्ड्रन? इन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल BAC, इस एंगल की बात कर रहा हूं, BAC, एंड एंगल EDF आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स. उसी तरह से इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाले एंगल का. अच्छा, इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम क्या है? इस एंगल का नाम, चलो 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 सोचो, वेरी सिंपल, ABC. ABC, जो जहां एंगल बनता है उस एज को हम बीच में रखते हैं. B बीच में रहेगा क्योंकि B में एंगल बन रहा है. ABC, इसे तुम CBA भी बोल सकते हो. तो एंगल ABC एंड दूसरे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल उसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, DEF. एंगल DEF आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. DEF आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और क्या चिल्ड्रन? तीसरा वाला जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल ACB. इधर कौन सा एंगल? इधर होगा DFE. ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग है क्योंकि इक्वल है. एंगल ACB एंड एंगल DEF आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल. इसमें कोई भी हार्ड तो नहीं लग रहा है, सबको इजी लग रहा है. ओके, अब मैं दो ट्रायंगल्स बनाता हूं, इसमें तुम लोग आइडेंटिफाई करना कि कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स है, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो चिल्ड्रन. देयर आर टू ट्रायंगल्स. से द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज PQR एंड से दिस ट्रायंगल इज XYZ. XYZ. क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? यू विल इमीडिएटली से नहीं सर, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है. कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है क्योंकि इनको जब हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, करेंगे, तो फिर ये ऑब्वियसली एक दूसरे के एजेस के साथ मैच नहीं करेगा. ऐसा बात नहीं है. तुरंत देखकर इंपल्सिव होकर डिसीजन मत लेना.
एक्चुअली क्या किया गया है कि ट्रायंगल को रोटेट कर दिया गया है, इस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया गया है चिल्ड्रन। इफ दिस इज ब्रॉट टू द सेम ओरिएंटेशन एज द अदर वन, अगर मैं इसे इस तरह से रोटेट कर दूं, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे रोटेट कर दूं, अब दोनों को देखो, वो सेम ट्रायंगल ही था जिसको बस मैंने रोटेट कर दिया। अभी तुमसे अगर मैं पूछूं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, you will immediately say yes, 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 they are congruent now, because if I overlap this on the other one, or xyz on the pqr, or pqr on the xyz, they will overlap, exactly coincide। तो ऐसा नहीं है कि ये सेम ओरिएंटेशन में होगा तो ही कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं इस pqr को ऐसे रोटेट कर दूं इस तरह से, अभी भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स अभी भी कॉन्ग्रुएंट हैं, देखने से नहीं लग रहा होगा, लेकिन इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए तो हम डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर इंटेलिजेंटली हम सोचे तो। वेल, अभी हमारा क्या काम है इस टॉपिक में जो हम पढ़ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को आइडेंटिफाई करना। एक बात तो क्लियर है कि ट्रायंगल पी क्यू आर is congruent with triangle YZX. PQR is congruent with triangle YZX. ठीक है, अब तुम लोग बताना कि PQR, आई मीन PQ इस साइड की बात करें, PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? क्या PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड XY है? ना, नहीं, बिकॉज PQ इज नॉट इक्वल टू XY। PQ, तुम लोग यहां देखकर बताओ PQ कौन से साइड से इक्वल है? क्लियरली दिख रहा है PQ इस YZ के इक्वल है, इसका मतलब PQ एंड YZ आर corresponding sides। क्लियर? उसी तरह से मुझे बताओ तुम लोग देखकर कि क्यू आर का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, वहां पर दूसरे वाले ट्रायंगल में क्यू आर का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? क्लियरली दिख रहा है कि ये जो क्यू आर है ये एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है 90, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स के एकदम सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसके भी एकदम सामने वाला साइड ये वाला है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू आर एंड एक्स, आई मीन एक्स जेड आर corresponding sides, corresponding sides, simple, very simple। and बाकी एक ही साइड बचा हुआ है, पी आर का corresponding कौन सा है? पी आर के corresponding कौन सा है? वाई एक्स। पी आर एंड वाई एक्स आर corresponding sides। तो ये चीज क्लियर हो गया ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रायंगल्स का ओरिएंटेशन बस चेंज हो जाए तो इससे ये कंफ्यूज मत होना कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही नहीं है, ठीक है। अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है, तो तुम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, इस एंगल का नाम है एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। चलो इसे सिंपली एंगल पी बुलाते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। एंगल पी, एंगल पी का कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है उधर? ऑब्वियसली ये वाला एंगल वाई जहां 90 डिग्रीज बना है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल वाई। इसका मतलब एंगल पी एंड एंगल वाई आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंपल। उसी तरह से ये एंगल को देखो, ये एंगल को देखो, एंगल क्यू, एंड थोड़ा दिमाग लगाओ, एंगल क्यू कौन से एंगल से इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल में? ऑब्वियसली एंगल क्यू एंगल जेड के इक्वल है, एंगल जेड के इक्वल है। प्रोट्रैक्टर से भी मेजर करके देख पाएंगे, ऐसे क्लियरली हमें दिख रहा है एंगल क्यू एंड
एंगल Z, ये Z है, घुमा दिया इसलिए Z ऐसा दिख रहा है। ओके, ये Y को घुमा दिया गया ना, ये Y एक्चुअली ऐसा है, उससे कंफ्यूज मत हो। एंगल Q एंड एंगल Z आर corresponding एंगल्स। मुझे उम्मीद है तुम्हें corresponding sides एंड corresponding एंगल्स बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। एंड सिमिलरली बहुत इजी है कि एंगल R एंड एंगल X आर corresponding एंगल्स। तो corresponding sides क्या होता है, corresponding एंगल्स क्या होता है, क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि ये फिगर घुमाया हुआ था, एक फिगर घुमाया हुआ था। लेकिन जो क्वेश्चन हमने इसमें किया, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें तो घुमाया, रोटेट किया हुआ नहीं था, इसलिए क्लियरली एकदम इजीली हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आई होप दिस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। आगे के लेक्चर में हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।